So, guys, I want to tell you that today's fun podcast is with Atharva, the one and one. And I don't know how to pronounce his surname, but I'm going to add him. Did he join? Did he join, man? Atharva, did you join? Yes, yes. Hello, can you hear me? Yeah, Bro, yeah, am yeah. I audible? Yeah. Bro, okay. 3, 2, 1, go. Hey guys, this is Sagar Veer. Today we are back with another new podcast, and today's podcast is with Atharva. Bro, I don't know how to pronounce your surname. Just tell me how do I pronounce it right? So it's Devanavar. Devanavar. So De Atharva Devanavar. Deva Devanavar. 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 Yeah. So Atharva Devanavar is a certified fitness trainer and he's an aspiring strength and conditioning specialist. Guys, and he has played for 14 years of cricket. Big fan of cricket. He's a big fan of cricket. So, Atharva, how is this lockdown treating you, first of all, because you can't go out and you can't play cricket and all right now? So, is it frustrating that you can't go anywhere? So first of all, thank you for having me. Yeah, yeah, And so yeah, it's quite a bit frustrating. खेलने को नहीं मिलता है थोड़ा. You can't go for running. yeah, You can't do anything. So yeah, yeah, it's a bit frustrating, but you get used to it. right. I'm getting Yeah. lazy every day. A lot of people are getting lazy. Like, Even I'm I getting got lazy fat. a bit. Yeah, even I got lazy a bit in between, but Like, just but I cope up just with told it. myself like you can't get lazy because once the lockdown is over and still you are lazy, you won't you will just poof, you will just blow out. हाँ. Yeah, लाइक तेरे को क्या लगता है कि मतलब देख मेरे को एक्सरसाइज करने का है, ठीक है, मेरे को है, मैं करता भी हूँ, बट ये लॉकडाउन में ना इतनी सारी चीजें, लाइक बर्तन धोता है तू घर पे, मेरे को पहले बता. I do each and every right from cooking, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई करना. मैं मतलब लिटरली आई कैन. मैं चपाती कर सकता हूँ, मैं भाकरी कर सकता हूँ, व्हाट? मैं सब्जी वगैरह सब सब कर सकता हूँ. ओह आई स्टे अलोन इन मुंबई, सो आई नो हाउ टू कुक. सो माय गॉड. कुकिंग से लेके घर के साफ सफाई वगैरह सब कर सकता Everything हूँ, you तो वो manage भी it हो on जाता है. yourself. Great, man. Great. I used to live in Pune, so there अपना मेस था, तो मेस से खाना आता था, तो मेस हाँ, लगाना तो तो सीन इजीली हो सेट है. जाता था. Yes, या so वो सीन नहीं था. But you are a certified fitness trainer, so एग्जैक्टली. how do you how would you explain that कि किसी को बताना है कि तू सर्टिफाइड ट्रेनर है, क्योंकि आज जिम में जाते हैं तो सब लोग सर्टिफाइड ट्रेनर बन के घूम रहा है. समझ रहा है ना कि हाँ, एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. ऐसा मार ब्रो, ऐसा मार. तो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम देम कि नहीं ब्रो, सो मैं अलग है. ओके. सो फर्स्ट जब मैंने सर्टिफाइड किया, तो ओके, ओके. तो वो एक थोड़ा सा जो एक अंडरग्राउंड लेवल, जब आप बिल्डिंग बना रहे हो तो एक बेस फाउंडेशन. आपका स्ट्रांग होना चाहिए, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए. तो वो मेरा वो सर्टिफाइड कोर्स ने मेरा बना दिया. ओके. दैट मेड मी लाइक ओके, क्लियर टू ऑल द concepts. ओके. Later when I got into strength and conditioning, वो that made a clear vision कि okay, the coaching or the training should be principle based. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. Okay, या. तो जो साइंस रहता है, तो लाइक फिटनेस इज कम्प्लीटली साइंस बेस्ड. यू कैन जस्ट टेल एनीवन टू यार तू जा और क्या 40-50 मिनट भाग के आ, यार तू जा और 10 पुशअप्स कर मार, 100 पुशअप्स मार. यू कांट. सो सो वो एक स्टडी है कि ओके, इसका इतनी कैपेसिटी है, इसकी इतनी कैपेसिटी है, एंड और उसके हिसाब से यू नीड टू वर्क ऑन इट. तो ये प्रिंसिपल बेस्ड है. तो बोथ द कोर्सेज हेल्प मी टू ओके, मतलब ये हिसाब से मुझे जाना है कि आई कैन जस्ट गिव एनीवन, या तो आज बस रनिंग करना है, आज बस पुशअप्स करना है, आज बस तुझे लेग्स डे. नो, देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड इट, देयर शुड बी अ प्रिंसिपल बिहाइंड इट. राइट. Otherwise, you can't give anyone any program. सो एवरी पर्सन यू हैव टू स्टडी कि नहीं इसका बॉडी अलग है. Exactly. लाइक वो एंडोमॉर्फ एक्टोमॉर्फ जो हम लोग बॉडी टाइप के हिसाब से, Exactly. The लाइक body यू types. लुक The लाइक body एन type. एंडोमॉर्फ, राइट, कि थोड़ा भी खा लिया तो Exactly. पफ हो जाता है. इवन आई एम एन एंडोमॉर्फ. Tough हो जाता सो है. Yeah. उसके लाइक इज इट
वो कैलोरी डेफिसिट एंड ऑल उसमें आता होगा, लाइक इसी के बारे में एग्जैक्टली यू मस्ट बी स्टडिंग, राइट? एग्जैक्टली। तो ओके ये ओके ये बहुत बेसिक चीज है। राइट। तो सो एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, कैन यू मेसोमॉर्फ। जस्ट मतलब अभी ऑडियंस को समझे ऐसा, कैन यू एक्सप्लेन इट इन लाइक इन सिंपल टर्म्स, लाइक व्हाट एस्पेक्ट्स डू यू स्टडी एंड ऑल, लाइक थोड़ा बहुत, नॉट डेप्थ में, सो थोड़ा बहुत। okay, so basically whenever I take, so I'll tell you, so whenever I take any whenever I meet a client, ओके और उनको अगर मुझे ट्रेनिंग चाहिए, तो there are seven basic functions which I need to check. ओके ओह 7। वो ओके, सो वो किसी भी, चाहे वो किसी भी बॉडी टाइप का हो, मे बी एंडो, मेसो, हाँ एनीथिंग, ओके। हाँ सो उनका पुल, how effectively he can pull, हाँ the push, हाँ the squat, ओके squattings, ओके उनका जो lunges exercise है वो, ओके your hinge, मतलब Yeah. how Yeah. good you bend with Stretch the help of your hips, या ओके yeah, ओके hips, तो वो hinge हो गया। your carry, how well you can carry the weights, ओके उनका corrective movement। राइट so ऐसे 6 to 7 functions है फंक्शंस है। which I need to check। हाँ, Okay. तो उसके ऊपर I can easily assess and program the design, Okay. program the exercises। ओके so उनके, okay, if I tell him कि okay, push-ups करना है, तो how many push-ups he can do and what is the correct form, depending on that, okay, I can assess, okay, he's good in it, he's weak in it। I so basically मुझे उनके पेक्स पर ज्यादा वर्क करना है, फिर डेल्टॉइड्स के ऊपर, शोल्डर के ऊपर ज्यादा वर्क करना है। सो दिस So, इसके ऊपर, या सो इसके ऊपर ही मुझे ये डिसाइड करना पड़ता है कि ओके, ऐसा मुझे करना है। सो बॉडी टाइप, जब कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है, बॉडी टाइप डजंट मैटर। हाँ राइट तो वेट ट्रेनिंग सबके लिए इम्पोर्टेंट है, मेल Right. फीमेल सबके लिए Right, इम्पोर्टेंट है right. वेट ट्रेनिंग। राइट अकॉर्डिंग टू मी, और साइंस बेस्ड है बेसिकली, कि फीमेल्स को ज्यादा जरूरत है वेट ट्रेनिंग की कंपेयर टू मेल, विच दे राइट हैव लेटर इन देयर लाइफ। ओके So, weight सो दे training- शुड वर्क आउट मोर। ओके एग्जैक्टली, वेट ट्रेनिंग ज्यादा करनी चाहिए उनको। Weight ये बहुत training बड़ा ज्यादा myth है ना important है। मार्केट में कि बहुत, लाइक बहुत। मेरा बॉडी मस्कुलर हो जाएगा एंड ऑल दैट। बहुत बहुत बहुत। सो लाइक मेरे भी दोस्त बहुत है कि लाइक मैंने उनको बोला है कि स्टार्ट गोइंग टू जिम, स्टार्ट वर्किंग आउट, दे आर लाइक नहीं, मुझे वो जिम वगैरह पसंद नहीं है। ये होता है लाइक प्रॉपर मिथ है। राइट सो आई होप पीपल कैन अंडरस्टैंड राइट कि ये एक मिथ Yeah. है, एंड राइट everyone should follow a workout program। even that is a myth, right? That endomorph and ectomorph के लिए अलग चीजें हैं, मेरा वेट गेन That's नहीं होता है basically- एंड ऑल दैट। No. Okay. That's basically related to nutrition and Okay. training as well। वो Right. affect करता है। हाँ So एक endomorph के लिए मैं अगर, so a person needs to lose his weight, हाँ okay, तो he needs to go on a calorie deficit। तो बहुत लोगों को लाइक जब जिम में आते लाइक, यार सर मुझे वेट कम करना है। सो 90% ऑफ द क्राउड इज लाइक दिस कि मुझे वेट कम करना है। इंडिया में ऐसे ऑलमोस्ट सब है कि सर ऐसा ऐसा है, मुझे टमी का फैट लूज करना है, हाँ, right. मुझे यहाँ का फैट लूज करना है। Yeah. सो लवेंडल्स so basically yes. exactly Right. so अगर लोगों को वेट लॉस करना है, तो उसका चलो you need to go on a diet, proper diet that should be a bit of less in calories, calorie deficit, Okay. और फिर प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर उनको वेट गेन करना है, Right. तो उनका कैलोरी इनटेक बढ़ाना है, हाँ उनका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उस हिसाब से चेंज होगा, उनका Right. स्लीप पैटर्न वैसे Right. होगा। राइट सो ये मिथ नहीं है, लेकिन ये बहुत एक, जैसे मैंने बोला कि जो बेस होता है, फाउंडेशन होता है, दैट कम्स इन दैट। वो फाउंडेशन जो बॉडी टाइप्स के है, वो फाउंडेशन में आता है। वो आएंगे, वो 7 पार्ट्स आएंगे। हाँ उसके बाद हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, राइट? हाँ, तो बेसिकली सो जो बॉडी टाइप्स है वो एक उन्होंने बनाया कि इजी हो कि एक रिकॉग्नाइज करने के लिए बॉडी की, ओके ये एंडोमॉर्फ में, ये मेसोमॉर्फ में, ये एक्टोमॉर्फ में, राइट एक इजी हो जाए समझने के लिए।
हाँ, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उसके हिसाब से आप बाद में चेंज करो. right. So while talking about this, like endomorph, ectomorph, there comes dieting in this, and Exactly. so there are multiple diets, but I just want to touch upon two diets which I would love to talk about, कि ketosis and carnivorous diet, जो कि पता नहीं कितने लोग को पता है इस बारे में, but and intermittent fasting. Okay, so there is one more. Intermittent fasting. Yes, I'm into so intermittent fasting. even I I'm into have intermittent tried fasting. it Yeah. for an 8 months. I did it, but first of all, how good is ketosis? Because I have done it, and what's your thought? I want to know. So keto. So the diet. The name of the diet is keto diet. Yeah. Okay. And your body. उसके बाद आपकी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है. Once you are in a keto diet. Right. So that's a hormonal change which our Right. body gets into. Right. Keto diet. So keto diet is only fats and proteins. Hmm. The carbs are almost to Almost zero. nil. null Yeah, ही कर almost देते हैं. zero. Almost Right. zero. Right. The body Around starts just 100 gram. starts running on fat, So and it starts to हाँ, burn, right? only fats and protein. क्योंकि जो इंसुलिन लेवल होता है, जो अपना इंसुलिन करके जो हार्मोन है, हाँ हाँ हाँ. तो वो अपने बॉडी में सबसे पहले कार्ब्स को सिक्रीट करता है, एंड जो इंसुलिन हाँ. लेवल गेट फ्लक्चुएटेड. Okay. सो जो लोग बस कार्ब्स खाते हैं, सो Okay. कार्ब्स में लिए हमारी रोटी, राइस, जो भी आप जो हमारे सोर्सेज है कार्ब्स. सो इंडियन डाइट इज बेसिकली कार्ब लोडेड विद कार्ब्स. Yeah. सो Right. ज्यादा कार्ब्स खाओगे तो इंसुलिन लेवल उतना ही बढ़ता जाएगा. Right. सो इन तो कीटोसिस डायबिटीज होने का बहुत कार्ब्स. सारा चांस बढ़ राइट. डायबिटिक सो हो सकते हैं हम. एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली. सो वो कार्ब्स लेवल बस इंक्रीज होते जाता है. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग उसमें आते है. ओके, एक कार्ब्स इंसुलिन का सेंसिटिविटी कम कर देते, ये होता है, हाँ. रेजिस्टिव हो जाता है इंसुलिन. सो Okay. यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ कार्ब्स वो राइज करने के लिए. हम्म. सो वो हम ओके, लोग मैनेज करते हैं सो फैट के साथ, राइट? एग्जैक्टली. तो कीटो में वो फैट और प्रोटीन के साथ मैनेज करते हैं. Whereas with fasting, intermittent हाँ. fasting, ओके. 16 आवर्स का जो फास्ट रहता है, हाँ. तो आपका इंसुलिन है वो रेजिस्टिव हो जाता है. हम्म. एंड वंस इट गेट रेजिस्टिव हाँ. टू द कार्ब्स, तो वो इंसुलिन आपका ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, हाँ. और वो ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करता है. द पीपल व्हाट वी कॉल मेटाबॉलिज्म, कि थोड़े भी खाने के बाद मोटे हो जाते हो हाँ. वगैरह, दैट्स मेटाबॉलिज्म इशू. राइट. तो वो रेजिस्टिव कर देता है मेटाबॉलिज्म को. राइट. सो फास्टिंग के वो तीन आपके ग्रोथ हार्मोन को हेल्प करता है. राइट. I haven't tried keto yet, but Okay. I'm into intermittent fasting for around, I guess, 7 to 8 months. ओके. सो आई हैव डन फॉर 8 months. मेरा खाने का टाइमिंग रहता था फ्रॉम 3 to 11, और उसके बाद जो भी है सब बस पानी बंद. और ब्लैक हाँ, कॉफी. बंद बंद सब बंद. Exactly, सिर्फ पानी exactly. पे जियो. Yeah. एंड उसमें भी मैं 2 टाइम ही खाना खाता था, जो अपना मेस का डब्बा आता है. तो वो काफी लाइक मेरे को लगता था कि ये शायद मेरे को भूख लगती थी, बट तो मैं दही ये सब जो योगर्ट वोगर्ट है थोड़ा वो खा लेता था बीच में, बिकॉज नहीं जिंदा नहीं रह पा रहा. भूख लग- वो मेस का जीवन नाही राहू शकत भाई. दाल पानी नहीं है राहू वो. शकत आपण. So, and then keto I tried it for 10 days, but it was damn costly. My mom and Yeah. I tried keto together, and we just used to roast chicken and all, and जब पूरा घी में तल के जो खाया तल के वगैरह, हाँ. तो मजा पूरा तो ग्रिल आया. वगैरह करके, हाँ, मैरिनेट हाँ, करके, ग्रिल हाँ, वगैरह करके खाना है. एकदम मजेदार खाया, लेकिन जो बिल निकला है 10 दिन में, देन वी हैड टू शट डाउन, बिकॉज पूरा घर का लाइक मेरे घर में 5 थोड़ा लोग हैं, वॉलेट ठीक है? वॉलेट को भी संभालना पड़ता है. हाँ, थोड़ा तो- वॉलेट को भी संभालना पड़ता है. So my mom is like, we both are eating it, but others are also there in house. So even we have to We need to feed them. Yeah. Yeah. And do you know about this carnivorous diet which has surfaced in this? So I have no. Okay, No. so I'm not aware of it. Okay, I'll tell you what I have heard about it. I listened Okay. to this podcast called Joe Rogan podcast. In that, there Okay. was a guest who is a doctor, and he has tried carnivorous diet for 3 years. And in carnivorous Okay. diet, he's just eating non-veg, no carbs, nothing, Day and night. or day and night. He will have a big Okay. meal, लेकिन पूरा steak Okay. खाएगा वो. Like
अच्छे से। ओके सो इंटरमिटेंट ओके फास्टिंग भी कर सकता है वो, लाइक दिन में एक बार ही खाऊंगा मैं खाना, लेकिन अक्खा कोमड़ी खाएगा एक साथ बैठ के, लाइक दैट काइंड ऑफ उसका वो था। एग्जैक्ट या एंड ही इज अ बिग या डूड, ओके, हिज नेम इज जैको ओके समथिंग, जैको विलिस, आई सेंड यू हिज इंस्टाग्राम ओके हैंडल। या सो श्योर इन श्योर दैट, तो ही टेल्स मी दैट सब सब सही है मेरा, सब लाइक सब सही है, लेकिन ओके जो मैं हकता है ना वो काला है, लाइक ब्लैक, इट्स जस्ट एग्जैक्टली देयर इज या नो अदर ब्लैक कलर, इट्स ब्लैक। या और या लाइक हम लोग जब ग्रीन्स खाते हैं तो व्हेन वी शिट इट्स ब्राउन इन कलर एंड इट स्मूथली या निकल या जाता है वो। या या बट व्हेन वी या आर ईटिंग नॉन वेज एंड ऑल, इट जस्ट वो गेट्स इजीली नहीं निकलता नहीं बाहर निकलता। सो या दैट इज द वो इजीली ओनली इजीली इशू नहीं निकलता बाहर ही सेज कि ये एग्जैक्टली है। बट आई डोंट नो कि हाउ मच यू, and the more या easily will and the more easily you poop या the the more मतलब उतना आप आपके बॉडी what we can say उतना ज्यादा काम कर सकती है। ओके ओके ओके, और so गॉट योर basically पॉइंट। even I had that problem। मुझे लाइक बहुत टाइम लगता था कि लाइक बहुत जब पहली बार जब मेरे एक सर ने डाइट दिया था तो लाइक हाँ, लाइक अगर उसके अलावा कुछ खाऊं मैं बस भागता था। मेरा ओके, निकल जाता था पूरी तरह से क्योंकि ओह मेरे माय गॉड, so so there was a time when I ate around 24 chapatis with butter chicken। ओके, दैट्स टू मच। मैं खाता था, मैं आराम से और मुझे कुछ नहीं होता था। Okay, you are a मैं big एक dude, बार भी man. So 24 you might आई have it. वॉज अ Yeah, बिग डूड। हाँ तो yeah. लाइक मुझे कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो मैंने अराउंड 15 या 16 चपाती खाए थे विद छोले और राइस। Yeah. मैंने बटर चिकन खाया Right. था, Oh उसके my पहले God. वड़ा पाव और मेरी भजी वगैरह हो चुकी थी। लाइक कुछ भी Okay. खाओ लाइक आई कैन मतलब इजीली कुछ कुछ नहीं होता था। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं फिटनेस बढ़ता गया मतलब मैं ज्यादा yeah. इसमें आता चला गया, मैं डाइट फॉलो करता गया। Hmm. अब अगर मैं ज्यादा कुछ खाऊं माई बॉडी कांट बेयर इट, माई बॉडी कांट बेयर इट। Okay. So तीन या it's sensitive तीन now. या It's more sensitive. बहुत सेंसिटिव या 3 या 4 चपाती के ऊपर गया लग जाती है, पूरी लग जाती है मेरी। So you have to take and my care of sister yourself. and my sister and mother are there right now, so they Okay. might be laughing right now. So, do you feel that when we are eating non-veg, so would you support the vegan wala thing? Someone was asking, even someone was asking in the comments that what's Okay. your take on vegan diet and vegan या non-veg खाना जरूरी है, like बहुत sake of protein, what would you, so किस तरफ से so जाएगा? I आप have to ask. so protein intake without your non-veg can't be fulfilled, पूरा नहीं हो सकता। Okay. Yeah, क्योंकि even I believe in क्योंकि that. Yeah. क्योंकि प्लांट की बॉडी अलग है और एनिमल्स की बॉडी अलग है। Right. और प्लांट का अगर हम खाए तो उतना प्रोटीन हमें नहीं मिलता। दैट्स व्हाई दे से कि इंडियन डाइट पूरा कार्ब्स से भरा हुआ है, Hmm. कार्ब लोडेड विद कार्ब्स है, क्योंकि सब वेज है। Hmm. चपाती और थोड़ा सा दाल साइड में रहती है। वो भी क्या, बराबर। हाँ मेस वाली अच्छी रहती है ना बहुत ही ज्यादा तो। लेकिन वो सब पानी पानी रहती है। हाँ, राइट, सो क्या ही मिलता है। दाल ढूंढनी पड़ती है हमें। राइट। हाँ सो अगर कोई वीगन है so they can have whey protein, they can have supplements are not harmful। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि supplements are Okay. harmful। Right. बिल्कुल नहीं, supplements are not at all harmful। हाँ, Right. if you choose it wisely, Okay. Okay. मतलब Even I अगर have been taking supplements. Yeah. Even I do. या Right. so I अगर take you multivitamins and omega-3, like omega 3 biotin या and all that, which we don't get या in our food. Right. इन फूड। Yeah, you were saying और about अगर मतलब vegan. Yeah. और अगर मतलब अगर कोई जाए कि मुझे प्रोटीन चाहिए लेकिन मुझे 1000-1500 रुपए में प्रोटीन मिल रहा है 3 किलो का डब्बा वगैरह, सो दैट कम्प्लीटली मतलब वो 101% उसमें स्टेरॉइड्स होंगे। वो बस आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि अगर आप वीगन हो तो एंड इफ यू वांट टू फुलफिल योर प्रोटीन इनटेक आपको अलग से लेना पड़ता है प्रोटीन। Like that you should were be of good talking quality। about muscle blaze or something, और ये ऐसा तू जो बोल रहा है कि 1000 और में वे steroids प्रोटीन आते हैं, what you are, I'm not preferring brand, okay, 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 लेकिन okay, वे yeah, प्रोटीन, हाँ, पर वे प्रोटीन इट्स लाइक सो जो अपने दही के ऊपर का जो पानी होता है, हाँ, उससे like yeah,
Yeah, हाँ I know उससे that. Yeah, हाँ सो waste दैट्स वे बनता है. या Yeah, सो yeah, हाँ yeah. सो दैट्स वे सो वे सो सो वो किसी तो वो कोई भी ब्रांड का लो चलेगा नो प्रॉब्लम Right, लेकिन वे प्रोटीन अच्छा है सो इफ यू वांट टू बिल्ड मसल right, तो तो कार्ब्स और प्रोटीन्स एक साथ आते हैं उसमें right. लेकिन चूज वाइजली प्रेफर आप किसको रिफर करो आप उनके प्रेफरेंस पूछो 2-3 लोगों से पूछो कि क्या Right, कौन से अच्छे प्रोटीन्स है किसी भी एक इंसान को मत पूछो आई प्रेफर दैट कि ओके ये एक बता रही ये उनके प्रेफरेंस क्या है जानो right, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जस्ट चूज योर प्रोटीन right. Personally, I कि want ऐसे to. भी है Right, लाइक okay, okay. What you're कि saying? ऐसे ऐसे भी है Yeah. आप कि किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर यार मुझे 1,000 में मिल रहा है 1,500 में मिल रहा है हाँ, 500 में इतना मिल रहा है तो right. लाइक वी दिखते अरे हाँ चीप में मिल रहा है चल ले लो हाँ. So don't बट go यू डोंट नो हाउ यू पैसा कैन बचाने के अफेक्ट चक्कर में बॉडी मत हाँ खराब करो. हाँ You're saying. पैसा बच Right, हाँ right. क्योंकि आप यहाँ पर 1,000-2,000 रुपए बचा रहे हो Hmm. लेकिन बाद में वो जो बिल फाड़ेगा आपका वो गंदा मारेगा. दैट विल हाँ Hmm. वो लंबा खींचेगा फिर Hmm. Personally, सो I दैट्स have used Isopure mostly. So have you tried Isopure? ओके I think it's नो a really good protein. Okay. ओके I just wanted सो to know मुझे that मुझे what's your take मुझे on सो मेरे डैड तो बेसिकली सप्लीमेंट्स के और इसके पूरे अगेंस्ट it. है Against it. Okay. Even my dad. आई आई सो आई गेस अभी भी आई एम नॉट श्योर अभी का लेकिन मतलब मैं बहुत उनको समझाने की कोशिश किया करता हूँ है. Okay. कि ओके इसके लिए हाँ Hmm. इसके लिए ये जरूरत है यू Hmm. नीड इट Hmm. सो आई हैवंट ट्राइड इट येट Right. आई एम सेविंग माय मनी फॉर इट करना है क्योंकि जरूरत है आई नो आई एम लैकिंग प्रोटीन्स Yeah. पर चलता है I wanna ask you this कि when I'm not working out, should I still take protein? It depends. Whether you're working out or not working out, you need proteins. Your body need protein. Okay. So But okay. but once you're working out, you damage your muscles a bit. Right. Right. So उसके रिकवरी के लिए you need proteins. Hmm. उसको तो लगता है कुछ भी करो. Hmm. बट जो प्रोटीन आप तुम लोगे लाइक ओके ये मुझे मैं वर्कआउट नहीं कर लेकिन फिर भी प्रोटीन का इंटेक हाई रख रहा हूँ Hmm. दैट प्रोटीन इज ऑफ नो यूज क्योंकि आपके मसल डैमेज ही नहीं हो रहे Hmm. So if that's not happening, the protein the excess protein which are having it, Hmm. वो पूरा वेस्ट है Hmm. क्योंकि लोगों को मिथ है कि लाइक प्रोटीन खाने से मेरे 6 पैक आ जाते हैं Hmm. सो मैंने Right ये है. सुना है कि लाइक मुझे प्रोटीन चाहिए मेरे 6 पैक बनाने ऐसा नहीं है Hmm. you Right. need to work your shit Work, out yeah, in the right. gym yeah you Right. need to do that Right. उसके बाद आएगा ना घर पे बैठ के क्या बस खाने से होता तो लाइक everyone would have would just have. Yeah. had the proteins Right. So, like when I am there, like if I walk for 10 kilometers, like if I run for 5 and मेरा दिन में और 5 किलोमीटर इधर उधर चल के हो जाता है, so then I should take protein, right? Because no no, no so Okay. वो वर्कआउट भी नहीं हुआ like इधर उधर हम running, तो बहुत चलते लेकिन running 5 kilometer of running. so रनिंग हो गया ओके so the biggest myth is like okay people every day go for walk Right. लोगों को पूछते लाइक लोग हर रोज रास्ते पे चल रहे हैं ग्राउंड पे चल रहे हैं Hmm. Hmm. सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट आपका कार्डियो को वर्क करना पड़ता है आपको मसल्स को वर्क करना पड़ता है आपके फ्लेक्सिबिलिटी को वर्क करना योर एंड्योरेंस योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड योर स्ट्रेंथ with your nutrition fulfills the fitness that's a complete fitness Hmm. so आपको स्ट्रेंथ भी बढ़ानी होगी Hmm. आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए Right. आपको उतना एंड्योरेंस भी चाहिए Hmm. तो बस वॉकिंग करने से फिर रनिंग करने से ओके दैट्स फाइन आपका हार्ट स्ट्रांग हो रहा है Hmm. यू आर मेकिंग योर हार्ट स्ट्रांग ओके गुड बट उसके बाद क्या आपकी पूरी बॉडी भी है उसके साथ साथ आपके मसल्स को भी टोन करना है आपके मसल्स को भी स्ट्रेंथ चाहिए अदरवाइज दे वोंट सपोर्ट योर बोन्स Hmm. Right. अगर आप कुछ नीचे से उठाने जाओगे तो योर लोअर बैक विल हर्ट Right. So ये सब हैमस्ट्रिंग विल गेट factors है. हर्ट Hmm. तो ये बहुत भी है सारे कि factors है. तो ये वो वॉकिंग से हाँ तो ओके हाँ इफ यू आर डूइंग योर वर्क वगैरह ओके या मतलब आपके बॉडी थोड़ी अमाउंट में वर्क हो रही है दैट्स फाइन हाँ. Hmm. यू कैन हैव प्रोटीन बट इफ यू टॉक अबाउट फिटनेस ये तीनों एस्पेक्ट ऐड करने चाहिए और एंड विद दैट फुलफिल योर न्यूट्रिशन एस्पेक्ट एज वेल Right. Right.
how important is waking up early? So yeah, it's important. लोगों को 4 बजे सोने की आदत है आजकल, 4 इसलिए हाँ. So इवन मुझे ये मैं लॉकडाउन भी की वजह से शिकार हूँ मुझे उसका, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा छावा है बट आई नहीं, वांट टू जस्ट टेल ये लॉकडाउन की वजह से मुझे हो गया है. ओके ये लॉकडाउन की वजह से मुझे ये आदत हो गई है कि लेट राइट उठने की, बट आई एम ट्राइंग. हाँ, मैं अब फिर राइट से राइट नॉट लेट, नॉट दैट अर्ली, बट 6 बजे मैं अब उठने लगा हूँ. 6 उठना बजे, ओके 6 साढ़े 6 बजे तक तो एटलीस्ट you wake नींद up पूरी हो before जाती है. sunrise if या you at least see the sun rising up या सो पूरे दिन में सो कुछ नहीं किया या तो सो बेसिकली मैं मेरे सर के पास कोच करने के लिए मैं कोचिंग जाता था, क्रिकेट कोचिंग के लिए. ओके सो सो मेरे सर हर बार बोलते थे. सो पास 14 ईयर्स में मैं मेरे सर, मैं एक ही सर है जिनके पास मैं जाता हूँ. सो वो सुबह 5:30 बजे ग्राउंड पर आते थे. एग्जैक्टली 5:30 ही यूज्ड टू बी ऑन द ग्राउंड. ओके तो उसके पहले वो 4 बजे उठ के, और अगर हम 5:30 या 5:45 बजे के बाद आए, उसके बाद 1 वीक कम से कम ना बैटिंग मिलती थी ना बॉलिंग मिलती थी. जस्ट वही भागते रहो इधर से उधर, भागते रहो और फील्डिंग करते रहो. सो उसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ने, ओके आई नीड टू वेक अप अर्ली. सो समझ के आने लगा कि ओके सुबह ऑक्सीजन, आपके ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई होता है. सो आपके लिए वो हार्ट के लिए अच्छा है. राइट तो आपको हेल्प होती है ज्यादा अच्छा वर्कआउट करने के लिए. आप फ्रेशली वर्कआउट कर सकते हो कंपेयर टू लेटर इन द डे. राइट तो उस वक्त आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो सुबह के वक्त. राइट यू सेड समझ भी नहीं रहता. योर सर वेक अप एट 4, तो वो सोते कब होंगे? I guess he sleeps around 10:30. 9:30 10 okay yeah maybe around that. Yeah, 10:30 11 yeah. Man, that's crazy. So like That's मुझे just बचपन से crazy. वो फिर हमें वो आदत पड़ गई कि ओके हाँ. आई नीड टू वेक अप अर्ली. Right. Great man, great. So ये क्रिकेटर से स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कैसे? सो मैं पहले क्रिकेट अच्छा खेलता था. आई एम अ फास्ट बॉलर एंड मिड ऑर्डर बैट्समैन. ओके सो मैंने स्कूल की टीम लीड की 10th में. उसके बाद 11th में जोनल्स के लिए हुआ. सो मैं 8th में फर्स्टली आई वेंट टू पूना. स्कूल एक्सटर्नल करता था और बस 8th में रहने के लिए पूना में था अकेला विथ माई रूममेट्स. उस वक्त फिर 8th में 1 साल रहा वगैरह. तो 9th में मेरी पहली सर्जरी हुई ACL की. सो ACL इज द लिगामेंट बिटवीन योर नीज. वो नीज को बैलेंस करते हैं बेसिकली. इवन माय फ्रेंड सो वो फर्स्ट सर्जरी गॉन थ्रू इट. मेरे विद दोस्त विनीत है, वो फुटबॉल खेलते वक्त अभी नंबर्स बहुत बढ़ गए इसी. और फुटबॉलर्स को तो बहुत कॉमन है. फुटबॉलर्स की बीच बहुत कॉमन है. तो लाइक 9 में मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई. फिर थोड़े बहुत यहाँ थोड़े से निगल्स होते रहे राइट फ्रॉम 2016 टू 2019. ये 16 17 18 19 4 इयर्स मेरे कंटिन्यूस सर्जरीज होते रहे. ओके सो और उसके बीच में पूरा बेड रेस्ट फॉर रिकवरी के लिए ऑलमोस्ट 6 to 8 months. Oh my God. And you can't even jog. So और वो एज था मेरा अराउंड 17 to 21. Right from 2016 to 2019. So like वो तो एक प्राइम एज है एक किसी भी एथलीट का. और एट द एज ऑफ 21 जब मैं रिकवर हुआ मेरे इंजरी से, कि अब मुझे फिर से 0 से स्टार्ट करना था टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट कॉम्पिटिटिव लेवल. एट द एज ऑफ 21 और मैं कर रहा हूँ बीकॉम. एंड आई नो कि बीकॉम करने से मेरा कुछ बिल्कुल नहीं होने वाला है. मैं वो साइड है ही नहीं मेरी. मुझे वो पता चल गया था. So it might have affected you mentally and physically. Physically तो obviously affect हो ही रहा है. But how mentally it has affected you, and उससे comeback कैसे किया कि नहीं अब मेरे को जाना है यार, करना है, सर्टिफाइड ट्रेनर बनना है? How was that? क्योंकि मेंटली क्योंकि मैं कितने बार रोया होगी. लाइक सीन माय फ्रेंड्स प्लेइंग मैचेस, उनके इतने परफॉर्मेंस कर रहे हैं. मेरे आजू बाजू के सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं. एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग. और मैं यहाँ पर बेड पर लेटा हूँ. और पेरेंट्स टोल्ड मी लाइक तू चल, अब अभी नहीं गिरा फिर से उठ, फिर से गिरा तो फिर से उठ. जितने बार क्या होगा, क्या तेरा पैर टूटा तो नहीं है?
वी हैवंट ब्रोकन अप। टूटा तो भी चलेगा, तेरे पास 2 पैर है, एक टूट गया, एक तो है तेरे पास, उठ तो सही। राइट, सो दैट्स धीरे धीरे इंस्पायरिंग तो हाँ, तो वो हेल्प करते हैं, ओके चल मुझे देखना, चल क्या, टेक वन डे एट अ टाइम, टेक वन डे एट अ टाइम। और लाइक मेरा एक ये रूल कि लेट देम से व्हाट एवर दे वांट, इट डजंट मैटर व्हाट दे से। इवन आई फॉलो दैट। क्योंकि क्योंकि बहुत लोग हैं कि लाइक बोलेंगे यार सर्जरी हो गई अब कैसे, क्यों खिलाती उसको ये, छोड़ने को बोलो, बस पढ़ाई के लिए बोलो। बट दे मतलब उनको पता नहीं कि ओके व्हाट यू आर, यू नो बेटर योरसेल्फ। राइट, नो वन नोज बेटर देन यू। या सो लाइक इफ यू गो विद दिस, लाइक ठीक है चल, क्या टेक वन डे एट अ टाइम, चल उठ, फिर से उठ जा, फिर से उठ जा, चल मूव ऑन हो। राइट। और इससे लाइक हाँ, तो लाइक यही करता रहा। और एट द एंड जब 21 की एज में मुझे पता चला कि ओके मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे फिर से क्रिकेट जीरो से स्टार्ट करनी है, बिकॉज दैट विल टेक अ लॉट टाइम एंड एफर्ट्स, क्योंकि मुझे वो फिर से जीरो से उठ के मुझे कॉम्पिटिटिव लेवल में जाना है। और एल्स आई कैन चूज अ डिफरेंट पाथ विच आई लव। राइट। तो मैंने ये सर्चेस करने लगा, तो मेरे थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट होने लगे लोगों से। सो आई मेट अ फ्यू ग्रेट कोचेस। मैंने पिछले साल ब्रेटली के साथ वर्क किया, मिशेल वॉटसन के साथ काम किया है। Fuck, man. Sexy. So मेरे सर जो अभी है, so both of my sir have been with NCA, National Cricket Academy, for past 20 years, 10 years. Okay. So they have played with all the Indian cricket players. Oh. So ऐसे कोचेस मुझे मिलने लगे कि ओके मुझे क्या एक रास्ते बनने लगे अपने आप when you are working। हाँ आप या हो जाता है जब काम करते रहो, बी ट्रूथफुल। हाँ बस करते रहो, टेंशन मत लो, रिजल्ट का टेंशन मत लो, बस बी पेशेंट और करते जाओ। राइट, ग्रेट मैन, ग्रेट। सो this was about your surgeries and all, but when in this period you said that you have lost like number of opportunities गए होंगे, so because of surgery obviously। तो वो कैसा, वो फीलिंग भी you explained it कि नहीं यार मेरे को ये स्ट्रगल है अभी। Then there is another struggle you told me, that stammering, you had this sometimes, and people think that it's hard to overcome that। So how would you like, जो बच्चा अभी है, एक जो है 17 साल का छोटा बच्चा है, अगर वो कभी अपना ये पॉडकास्ट सुने, तो how would you say, क्या मैसेज देगा तू उसको कि नहीं ब्रो आ सकता है तू भी मेरे लीग में, like how would you inspire him? आ सकता है। मैं अभी भी स्टैमर करता हूँ कभी कभार, that's for sure। Okay। लेकिन जो मेरा अराउंड 8 या 9th में जो था मेरा, उससे बहुत कम है, लाइक दैट्स 2 पोल अपार्ट। सो लाइक बचपन से मैं बहुत अदर एक्टिविटीज में मैं बहुत था, मतलब डांस में, सो मैं एक्टिंग में था बचपन में, मेरे ऑडिशंस दिए, मैंने ग्रुप मतलब जो स्कूल के कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें मैंने पार्ट लिया है। लेकिन धीरे धीरे आई डोंट नो हाउ, बट धीरे धीरे वो बढ़ता गया स्टैमरिंग। सो लाइक मैं बहुत डरता था। It fucks with your confidence, right? A lot, बहुत, मतलब लाइक अगर स्कूल के वक्त, और ये हुआ है कि स्कूल एक लेक्चर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री लेक्चर चल रहा है, और टीचर आपको बोलते कि चल एक पैरा पढ़ना है। स्टैमरिंग के वक्त और स्टैमरिंग के वक्त यू स्पेसिफिकली यू स्टैमर बिटवीन द लेटर्स विच टी, ब, ये ऐसे है जिसमें लिप्स का बहुत इस्तेमाल है ना, ऐसे वक्त में बहुत स्टैमर होता है। और हिस्ट्री वगैरह के चैप्टर्स में यही और जो पैरा मुझे मिलता था उसमें ये शब्द बहुत ज्यादा है। अच्छा, okay। बहुत ज्यादा बहुत अनलकी फील है। तो लाइक बोलना ही नहीं आता था, लाइक मैं पूरा पूरा होता था और पूरी फटती थी। और बहुत सारे लोग मुझे हंसे हैं, लाइक पता नहीं था क्या है। एक बार मतलब लाइक लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद रिसर्च किया गूगल पर क्या होता है, धीरे धीरे स्टार्ट किया। मैं बाद में थोड़ा माइंडफुलनेस की तरफ भी बढ़ा, मेडिटेशन की तरफ भी। दैट इवन हेल्प मी टू, मतलब वो थोड़ा पेशेंस डेवलप करने के लिए,
थोड़ा सा काम डाउन होने के लिए वो भी हेल्प किया मुझे, राइट मेडिटेशन. राइट. सो हाँ, थोड़ा ऐसा कि लाइक हाँ बहुत सारे हैं जो खुद को बिल्ड उनको करते रहा ना. स्टैमरिंग है, कि इट्स स्टैमरिंग जस्ट बेसिकली अगर आपको कोई टेंशन है या फिर ऐसा कोई चीज खल गई है मतलब जो बचपन में हुआ है हाँ कुछ, तो उतना तुम्हें उतना भी उसकी डीप में वजह. नहीं पता, लेकिन हाँ, हाँ तो वी सबकॉन्शियसली हैव वो इफेक्ट कर मतलब रहा. एग्जैक्टली. और राइट. ऋतिक रोशन तो इतना बड़ा एग्जाम्पल है, वो ओवरकम स्टैमरिंग. ओके. ऋतिक रोशन को भी स्टैमरिंग था. ये मुझे आज पता चल रहा. ओके. गुड टू नो. तो ऋतिक रोशन बेसिकली हर शब्द में वो हकलाते थे. इवन एवरी सिंगल वर्ड उनको स्टैमरिंग था. सो लाइक वी नो नाउ कि ऋतिक रोशन उनका सुपरस्टार है. लैंग्वेज अब कैसा है. राइट. सो और उन्होंने अपने किसी एक इंटरव्यू में बताया कि लाइक ही स्टिल वर्क्स, मतलब जो उनके एक्सरसाइजेज है स्टैमरिंग के वो अभी भी करते हैं. फॉर गुड जो रिजल्ट. स्पीच के एक्सरसाइजेज है तो वो अभी भी करते हैं. राइट. सो Even- या बस yeah. जस्ट कीप, मतलब अगर कोई है ऐसा, इट्स बेटर टू टॉक विद समवन हु नोज अबाउट दिस. हाँ. क्योंकि मिसकंसेप्शन होते हैं कि लाइक पीपल Yes, से yes, यू आर yes. लाइंग. या. उनको Yeah. बोल या कि जब झूठ बोलते हो तो हकलाते हो. ये होता बहुत है, ही बोलते काट हैं, देने का ना बच्चों का, बोलते हैं क्योंकि ऐसा. हाँ ऐसा बोलते हैं, लेकिन राइट उसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है. इट्स राइट. बेटर टू टॉक विद दिस कि ये एक मेंटल साइड हो गया थोड़ा सा, कि गेट योर ब्रेन राइट, कि ले ओके हाँ मुझे मुझे बात करने की, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, स्टैमरिंग क्यों हो रही है मेरे पास, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि ऐसे कुछ चीज है जो मैं खुद के अंदर रख रहा हूँ. ओके आई डोंट वांट टू टेल एनीवन, मैं अंदर ही अंदर बस उसको रख रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी स्टैमरिंग हो रही है. Like I have a good example about this कि there was a comedian, I don't know if you know him, Steve Harvey करके एक comedian है, and he used to stammer a lot. उसको स्टैमरिंग का इतना प्रॉब्लम था. एंड उस एक इंसिडेंट बताता हूँ गाइस तुम लोग को कि उसको स्कूल में पूछा गया था कि उसको क्या करना है लाइफ में, एंड ही सेड लाइक वो स्टैमर करते करते उसने ऐसे लिखा था कि उसको टीवी पे आना है. एंड उसकी टीचर ने उसको हंसा, उसके टीचर ने उस पे हंसे थे और उसके क्लासमेट भी उस पे हंसे थे कि वो कभी नहीं बन पाएगा, बिकॉज तू एंड टीवी पे आना मतलब क्या है, ये कोई पैशन, ये कोई प्रोफेशन नहीं है टीवी पे आना. नहीं वो बच्चा था तो वो सोचता था कि मेरे को टीवी पे आना है, बस वो देखता था कि मुझे टीवी पे आना है. बट उसकी माँ समझती थी उसको कि ये बंदे को ऐसा है, ये मेरा बेटा है. एंड उसकी मॉम ने उसको हेल्प किया एंड वो अंडरस्टैंड किया वो सिचुएशन को, और वो आज वन ऑफ द बेस्ट, उसको किंग ऑफ कॉमेडी बोलते हैं यूएस में, कॉमेडी भाभी को. और वो कितने सारे शोज करता है. लाइक अभी जब वो इतने सारे शोज करता है तो वो हर क्रिसमस को वो टीचर को एक एलसीडी टीवी गिफ्ट भेजता है 60 इंच की हर क्रिसमस को, ताकि तू उधर को देखे कि मैं रोज टीवी पे आता हूँ. So that's how much inspiring that guy is. So this is how you can inspire, right? Yeah. Even Mr. Bean, the actor who played Mr. Bean. Yeah. उनको भी स्टैमरिंग थी बहुत. उनको भी, उनके ऊपर भी बहुत लोगों ने हंसा. But we know कि Mr. Bean अगर हो गया तो yeah. How you see this as a career option? कि आजकल this is not a mainstream career option what you have chosen. Yeah. That being a certified trainer and this strength and conditioning specialist you want to be. So जब ये हम सोचते हैं कि मुझे ये लेना है या मुझे ये परसीव करना है, so is it justified? Is it good enough that you can sustain? लेकिन या फिर इंजीनियरिंग ही करो जाके. So मेरे बहुत लाइक इंजीनियरिंग करके बाद यार इंजीनियरिंग लग गई, पूरी लग गई है मेरी. मुझे ये नहीं करना था, मुझे कुछ और करना था, लेकिन वो फिर भी क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से हाँ चले गए. तो मैं भी बीकॉम के लिए गया. बीकॉम भी लाइक कुछ नहीं आता, कॉमर्स एक किया, 12th तक कॉमर्स किया तूने, चल बीकॉम चला जा. बीकॉम के अलावा कुछ पता ही नहीं है. बट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बेसिकली इंडिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग किया है. और ठीक है, फॉर एक टाइम के लिए समझ में चला ओके अराउंड चल है, थोड़े बहुत लोग हैं जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग किया है. उसमें भी प्रैक्टिकली उतने नॉलेजेबल इंसान कितने हैं,
क्योंकि एट द एंड ऑफ द स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल नॉलेज. राइट, आप एप्लीकेशन. हाँ, आपको आपके एग्जाम्स में आए होंगे, पूरे 100 में 100 आए होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हाउ विल यू डू अ डेडलिफ्ट. आप कितना अच्छे आप एक नए आए हुए बच्चे को, एथलीट को सिखा सकते हो, क्योंकि दिस इज हाउ यू डू अ डेडलिफ्ट, दिस इज हाउ यू डू अ स्क्वाट, और उनका डिफरेंस कैसा है, क्या है. सो ये ऐसे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो प्रोफेशनल्स है वो बहुत कम है इंडिया में. और जो बेसिकली जो हम बोलते कि एक लाइक टायर बोलते हैं उसको, लाइक दैट्स अ कि एक के बाद एक के बाद द फ्लो चार्ट और द टायर व्हिच वी कॉल. सो इंडिया इज प्रोबेबली द लास्ट इन इट. स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को जो पूरा एक देखा जाए पूरे वर्ल्ड में, so इंडिया इज प्रोबेबली द लास्ट कंट्री. ओह माय गॉड. उतना ऐसे है. हमारे भी इंडिया में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस है जो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत वाइज है, लाइक उनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, एक्सपीरियंस उतने हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड है. बहुत लिमिट. इफ यू गो टू यूएस में हर लोकल जिम में एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, लोकल जिम में. अपने इधर जिम ट्रेनर नहीं है, लोकल जिम ट्रेनर नहीं है, कंडीशनर का कहाँ. खुद ही बच्चे कुछ भी करते जाके. हाँ, तो देखे ना अपने जिम के वीडियोस कैसे कैसे होते हैं यार. हाँ, मैं डर जाता हूँ. मैंने बचपन में लाइक दे आर डूइंग बाइसेप्स एवरी डे. हाथ तो दे सपोर्ट दे मुझे, मार रहा सपोर्ट दे मुझे. अरे बाप रे. आपकी मसल की कैपेसिटी अगर इतनी, हाँ, इतना आवाज कर इफ यू हैव बैग, और वो बैग अगर इतनी सी है, यू कांट फिल. क्या इतने से बैग में आप इतना नहीं भर सकते? आपका लिमिट है. ग्रेटेस्ट एग्जांपल. हाँ, अगर इतना सा आपका मसल है, इतने से मतलब आप इतना कैसे भर सकते हो? ऐसे थोड़ा 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 करके उसको बढ़ाना है ना. बट पीपल लाइक वांट बाइसेप, 16 इंच बाइसेप इन वन डे, 18 इंच बाइसेप वन डे, तो दे सपोर्ट मुझे. हाँ, एग्जैक्टली. ऐसे नहीं बनती लाइक. और उनको बताने के लिए, और मैंने देखा कि ट्रेनर भी ऐसे देखते रहते, उनको क्या बताना है यार. ये समझने लायक थोड़ी है आदमी जो जड़ बुद्धि है, नहीं समझ रहा. एग्जैक्टली. तो सबको यहाँ पर बॉडी बनानी है, लाइक फिटनेस क्यों करना है, जिम क्यों आना है, उसका प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है ये. एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में या फिर एक साल में बॉडी नहीं बनती. जो बॉडी बिल्डर्स देखते हैं लोग, उन्होंने 10-10, 12-12 साल बस जिम किया है. साल भर बस एक मूवमेंट करते. बहुत लोग मैंने देखे बस साल भर बस एक ही मूवमेंट, उसमें एक ही वेट से. इफ यू लिफ्टिंग 10 kg ऑफ वेट, वो साल भर बस 10 kg ही वेट उठाएंगे. ऐसे भी लोग मैंने, आई नो दीस पीपल एज वेल. मेरे को हंसी आता है इससे. जोक लिखेगा मैं, मतलब साल हो गए. क्योंकि यू नीड टू गेट द फॉर्म राइट. एक बार आपका जो फॉर्म जो है, द वे यू लिफ्ट द वेट, एक बार वो लिफ्ट हो गया तो 10 kg से 100 kg में जाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता. दैट्स हार्डली मैटर ऑफ टाइम. कि लाइक मुझे प्रोग्रेस करना है 10 kg से 100 kg में, लेकिन 10 kg में आपको फॉर्म सही करना है. आपके हर रेप आपका एट द एंड ऑफ योर सेट, लास्ट सेट का लास्ट रेप भी आपका उतना इफेक्टिव चाहिए जितना आपका फर्स्ट सेट का फर्स्ट रेप था. राइट. वो अगर एक बार हो गया विदाउट चेंजिंग द फॉर्म, फिर देन यू कैन चेंज कर सकते हैं हम लोग. increase the weight. Right. Exactly. Yeah. Right. Yeah. I just want to touch upon this part कि you said जब we were discussing cricket, you said कि नहीं अब मैं switch करना चाहता हूँ because मेरा age वो जा चुका है. 17 to 21 का age मेरा इंजरी में था. So and even when we are talking in a private chat, you said that I'm not that talented that much अभी, कि जितना बच्चे कर लिए हैं खुद को इम्प्रूव, अभी तक मैंने खुद को उतना इम्प्रूव किया नहीं है. सो हाउ डू यू डिसाइड यू आर नॉट गुड इनफ? कि मतलब कुछ लोग जिंदगी भर करते रहते हैं. लाइक मेरे दोस्त हैं जो कि अभी जाके लाइक इन द एज ऑफ 23 और 24 दे वांट टू बिकम एन फुटबॉलर. अभी फुटबॉलर बनने का, फुटबॉल खेलेगा मैं अभी. तो हाउ डू यू नो कि समवन नोज कि अभी रोक दो, ये कुछ और कर लो, बिकॉज अभी यहाँ पे दाल गलने नहीं वाली है. सो बेसिकली इसमें थोड़े से एस्पेक्ट्स है. सो फर्स्ट थिंग, नोइंग योरसेल्फ बेटर. ओके. खुद को जानो.
ओके ऐसे भी है which are who are talented, बहुत टैलेंटेड है, हाँ लेकिन फिर भी अभी तक कर नहीं पाए. एट द एंड ऑफ डे क्रिकेट अगर देखा जाए 11 लोग खेलने वाले हैं. हाँ अगर फुटबॉल देखा जाए यार दे आर लिमिटेड पीपल, दे आर लिमिटेड पीपल. हम्म सो तो वो पहली चीज के ओके अभी आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, हम्म आपकी लाइफ किस किस दिशा में जा रही है. हम्म और उससे बढ़कर मैंने एक ये सुना था. सो एक पॉडकास्ट सुना था बोमन ईरानी के, वो था बोमन ईरानी का था. Oh, yeah, beer bicep wala, I guess. Yeah, बियर बाइसेप. yeah, So yeah. he mentioned calling in that, Okay. calling, your Yeah, calling. right. I Yeah, remember. Yeah. yeah. So मैं हाँ, so वो बहुत बहुत क्या वो आपको क्लियर कर देगा कि ओके आपको किस दिशा में जाना है. हाँ बहुत क्लियर कर देगा आपको कि लाइक ओके ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा. हम्म if there are any what we can say, अगर कोई बीच में if you are getting a stopping, हम्म कोई बीच में रोक रहा है वो क्यों ऐसा, is there a reason to it. हम्म आपकी कॉलिंग क्या है, आपको कहाँ पर लेके जा रही है. हम्म कॉलिंग वो एक पॉडकास्ट में बार बार सुनता हूँ, लेकिन like that man just gave me a complete completely different different perspective. perspective. Right. एग्जैक्टली क्योंकि Right. टू लिसन टू दैट कॉलिंग. सो मैंने फिर खुद को एनालाइज किया कि ओके मैंने कैसे चेंज किया. आई जस्ट टुक अ डिसीजन दैट टाइम. मैंने बस सोच के लाइक यार मेरा होने नहीं वाला वगैरह वगैरह. मैंने जस्ट डिसीजन ले लिया कि ओके चलो मुझे अब मेरी खुद की रोटी वगैरह कुछ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि करियर बनाने के लिए एटलीस्ट आई नीड 4 to 5 years. ओके चलो थोड़ा बहुत तो खुद के लिए तो कमा लूं कुछ तो. Right. और To क्रिकेट be के लिए sustainable, कोचेस तो right? भरे पड़े Yeah. हैं. Yeah. क्रिकेट के लिए कोचेस वगैरह तो पड़े हुए हैं. हाँ. कितना होगा उसमें, और मेरा लाइकिंग कितना है. मैं ये चीज पूरा दिन भर विदाउट गेटिंग बोर्ड कर सकता हूँ, डे इन एंड डे आउट. हम्म मैंने ऐसे Right. बट उस वक्त जब मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि जब मैं क्रिकेट बस एक मैं टाइम पास के लिए खेलने वाला हूँ, जो लोकल मैचेस रहेंगे वो खेलूंगा बस एक खुद की, क्योंकि आई लव फास्ट Yeah. बॉलिंग, आई लव प्लेइंग Yeah. क्रिकेट. तो मैं उसके लिए बस एक साल में 2-3 मैच वो खेलूंगा, yeah. दैट्स वो इट. genuine और yeah, एज love. हाँ तो हाँ, और एज अ गेम आई चूज दिस फील्ड. और एक बार और ये भी एक मैंने चीज नोटिस की, इफ वंस यू चूज द राइट फील्ड, वो जब सब चीजें कनेक्ट होती जाती है, द डॉट्स, द सर्कल ऑफ लाइफ विच वी कॉल, और द कनेक्टिंग डॉट्स, वो अपने आप सब Connect सब होता एक जाएगा. से एक बाद एक कनेक्ट हो जाता है. क्योंकि लाइक जब मैंने शुरू किया, मैंने फेब में शुरू किया पिछले साल, प्रॉपर नॉलेज लेना फिटनेस का मेरे पास था. मैं यूट्यूब से देखता था या फिर खुद कर मैं जो सर से मैंने वगैरह, जो मेरे कोलाबो के सर वगैरह या फिर मेरे डैड से वगैरह कुछ सीखा था, उतना ही पता था मुझे. इसके अलावा कुछ पता नहीं कि एनाटॉमी क्या होता है, बायोमेकेनिक्स क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं था. फेब्रुवरी टू मई ये एक साल में मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड कर लिया कोर्स. मैं अभी जून में लेवल 1 सर्टिफाइड होने वाला हूँ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग. और मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ लेवल 3 CSCS कोर्स विच इज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री. Right. मैंने बीकॉम भी मैं 2 बार ड्रॉप आउट हुआ हूँ, Oh shit. वो नहीं कर पाया. लेकिन एक साल क्या Right. 2 बार ड्रॉप आउट. मैं फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट हुआ, मैं सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट हुआ बीकॉम. अभी थर्ड ईयर में चला गया मैं कैसे कैसे करके. लेकिन ये विद इन अ ईयर मैं ऐसे करता गया, ऐसे अच्छे लोगों के साथ काम किया. विद इन अ ईयर आई गॉट अ चांस टू वर्क Right. विद ब्रेटली एंड शेन वॉटसन. Oh my God. Yeah. Yeah. So उनके हाथ yeah, से मुझे 2 बार calling है साइन बॉल important. मिला. Right. कॉलिंग दैट कॉलिंग लीड्स योर वे. और वो Right. पता चल जाता है. Right. बस यू नीड टू नो योरसेल्फ. मतलब जितना अच्छे से खुद को जानोगे, Right. दैट्स इनफ. मिल जाए. और इस लॉकडाउन में मतलब 1-2-3 मेरे दोस्त थे, उनको पता चला कि ओके हाँ उनको किसमें इंटरेस्ट है. Interest है. हाँ, और ऐसा नहीं कि ओके स्पोर्ट्स में कोई नहीं हो रहा तो फिटनेस ही एक है. स्पोर्ट की इंडस्ट्री बहुत इतनी अब बढ़ चुकी है. लाइक रेफरी है, अंपायर्स है, और स्कोरिंग के लिए अलग एग्जाम्स है, क्योंकि हर स्पोर्ट में स्कोरिंग है, उसके हर एक अलग एग्जाम्स है. Right. उनके कोचेस के इतना एग्जाम्स है, diverse बहुत है. एग्जाम, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बहुत है. Right. बहुत लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स मतलब जस्ट वो फील्ड पर जाके खेलना है. ऐसा Right. नहीं है. बहुत मीडिया इंडस्ट्री तो बहुत इतनी बढ़ चुकी है. Right. Great, तो man. बहुत अपॉर्चुनिटीज है अभी. Great. So I just want to touch upon this. This is going to be my last question to you.
that you Okay. have been doing this training, you have played cricket, I know that you also handle your business, your dad's business and all. So Yeah. multiple things you're doing. So it's kind of Yeah. multitasking and it's tough to manage time and handle things at Yeah. one time. तीन चार काम करना बहुत tough होता है. So how do you manage it? ये काफी लोगों को मैं पूछता हूँ कि because I want to learn to manage properly because मेरे से होती नहीं चीजें. मतलब मैं, हाँ, मैं मेडिटेशन में करता हूँ वगैरह, लेकिन बहुत बार ऐसा ऐसा टाइम भी आता है लाइक यार मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे जाना है कहीं, तो Right. मुझे अच्छा. आई नीड अ हॉलीडे, ब्रेक मुझे डाउन हो गया. मुझे नहीं करना अभी है, हाँ हाँ. मुझे बस खत्म। पर्सनल लेकिन वो फिर पर्सनल. से हाँ पर एक फिर से एक 5 मिनट के बाद पता चलता है ओके नहीं ये प्रायोरिटी है, Oh, यू नीड टू डू दिस। need to और do this. बेसिकली मेरा Right. मेरा बिजनेस कोल्हापुर में है हम्म. और मैं रहता हूँ मुंबई में। तो हम्म. मुंबई के जो काम रहते हैं हमारे, जो हमारा फर्म है, तो हम्म. उसका जो काम रहता है तो वो मुंबई में जाके मैं देखता हूँ कभी कभार, Right. जो वहाँ के जो वेंडर्स है उनका Right. Right. वो कभी कभार मैं लाइक सुबह कोल्हापुर पहुंचता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, रात को फिर से मुंबई आने के लिए निकलता हूँ। मैं ऐसा भी किया Oh है my मैंने। God. Hustle is ट्रैवल, everything, bro. हसल, जस्ट मैं- वर्क हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। और मैं मतलब मुझे बिजनेस का पर्सपेक्टिव बहुत, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा फील्ड है जो मुझे हाँ. बहुत पसंद है। Okay. ये जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फील्ड है उसके साथ साथ उतना ही मुझे ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो Entrepreneurship. फील्ड है Yeah. वो, हाँ, बहुत बहुत पसंद है। सो आई फॉलो गैरी वी अलॉट, गैरी वेनरचक। Yeah. Okay. Even I do. Yeah. सो Yeah. ही इज He's लाइक inspiring. Yeah. दी मैन या। Okay. सो जस्ट वो हमेशा बोलते कि लाइक विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग रिटर्न, जस्ट वर्क हार्ड। 10 साल, 12 साल, डे इन डे आउट जस्ट काम करते रहो। Hmm. मैं जब स्कूल में था तो मेरी मॉम ने, मतलब तब मुझे पता नहीं चला, लेकिन आज जब मैं ये चीज के बारे में जब पढ़ता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के, तो मुझे पता चला कि मेरे मॉम ने मुझे तब एक बहुत अच्छा एक क्या बोले एक चीज करने के लिए दी थी। सो व्हेन आई वाज इन 6, आई गेस, हाँ 6 में था, तो दिवाली की छुट्टी जब रहती थी तो Hmm. मैं घर घर जाके साइकिल से जाके फ्लोटिंग कैंडल्स सेल करता था। Okay. जो हमारा स्पोर्ट्स बैग रहता है ना, जो हम हाँ. स्कूल में स्पोर्ट्स बैग लेके जाते हैं, तो Right. वो पूरा मैं फ्लोटिंग कैंडल से भरता था। पैकेट्स रहते थे और वो मैं घर घर में जाते हर घर में जाके ये सेल करता था। स्टार्ट में मैंने किया कि लाइक जो मैं जिन लोगों को जानता हूँ बस उनके पास जाता था। बाद में मैं एक बार सोचा कि नहीं चल जाना है, और मैं जितना हो सकता है उतना साइकिल से घूमता था सब जगह में। Hmm. तो उस वक्त थोड़ा सा ये पता चला ओके, लर्निंग टू गेट नोज, Yes. लोगों से ना सुनने की आदत आदत पड़ने लगी। रिजेक्शन नहीं हैंडल हमें नहीं करना चाहिए, सीखे. हाँ नहीं हमें नहीं चाहिए। और स्पेशली जब मैं दोपहर के वक्त जाता था 12-1 के बाद, Right. तब नहीं अभी नहीं। क्या हाँ. क्या सीधा कुछ सीधा लोगों नकार. ने, चल हाँ, निकल. क्या यहाँ पर मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया वगैरह, ऐसे भी लोग हैं। Right. लेकिन यू स्टार्ट लर्निंग वो एक्सपीरियंस है ना. रिजेक्शन। हाँ, Right. Right. फिर मेरी मॉम ये इवेंट मैनेजमेंट करती है, तो उसके Right. बर्थडे पार्टीज में मैंने आई वर्क एज जो होते ना लड़के जो टैटू निकालते बर्थडे पार्टीज में, हाँ वो हाँ भी हाँ. मैंने काम किया है, स्कूल में था Right. तब। Right. So did you और get मुझे paid? हर ऐसा माँ के अंडर काम हाँ, करने मुझे के लिए. Okay. एक 500 रुपए मिलते थे या, Right. और वो पैसे में जाते थे मुझे वो पैसे मुझे हाथ में नहीं मिलते थे, वो Right. डायरेक्टली मेरे बैंक Obviously. अकाउंट में जाते थे। Okay. Oh. हाँ, बैंक तो अकाउंट में डाल रही है माँ. लेकिन हाँ, Right. हाँ तो मुझे वो था आदत लग ओके। फिर उसके बाद जब डैड के साथ बिजनेस ज्वाइन किया, तब एंटरप्रेन्योरशिप कैसा होता है, हाउ यू Right. नीड वो टू भी डील विद प्रोफेशनल वे पीपल। में. Hmm. वो डील विद पीपल, आपको कैसे आपको लोगों को कॉल आते हैं कि लाइक मुझे हमें पेमेंट चाहिए, हमें कुछ पता नहीं है। Hmm. आप जब सोए हो तो क्या तब भी कॉल आएंगे, किसी भी वक्त कॉल आएगा इनके लोगों की लाइक हमें पेमेंट चाहिए, कुछ पता नहीं है वगैरह। Hmm. उस वक्त आप कैसे डील करने हैं, Hmm. ऐसे बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती है कि लाइक सो इसके और ये करना है। और ऊपर से ये चीज मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फील्ड में अफेक्ट नहीं कर सकता होना चाहिए. कि like, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट है मतलब लाइक सोचते बैठे मुझे ऐसा करना है, इनका कॉल आया तो मुझे पैसे देने, नहीं, मुझे वहां पर तब फोकस करना है। आई नीड टू फोकस ऑन माई क्लाइंट, आई नीड टू फोकस ऑन माई एथलीट, Right. क्योंकि उनका वो अगर मैं उन पर से थोड़ा भी ध्यान हट गया मेरा, तो दे आर रिस्क ऑफ गेटिंग इंजुरी, दे आर अंडर रिस्क ऑफ गेटिंग इंजुरी।
तो हाँ, तो ये Right. बहुत लाइक मुझे बीइंग इन द मोमेंट और जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाएगा एक बार। बी पेशेंट बी मैं सो इस सब से मैंने बहुत पेशेंट होने लगा कि चल यार, करते रहे तो बस The करते रहे, patience is the सोच मत key. करते Right. बहुत। There's और पेशेंट मतलब confidence, लोगों को लगता है there is कि patience. Right. पेशेंट लोगों को लगता है अरे मैं एक हफ्ता मैंने सोचा, मुझे मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। एक हफ्ते में कुछ नहीं होला, यू नीड years and Like years of people want patience। answer अभी, क्वेश्चन पूछने का अभी, अभी के आंसर भी अभी अभी। चाहिए, अरे हाँ, एक नहीं अभी मिलता के है अभी भाई आंसर वैसे। चाहिए। साला क्या तुम लोग क्या सोचता है कि सब लोग ऐसा एक दिन में मचाता है क्या? So hey man, thanks for coming. We are going to थैंक end यू this ब्रो। live, and I learned a lot from you, and it was great talking to you, Atharva. And I hope we ग्रेट will फन टू take यू a मीट यू। we will take a selfie कि हमें याद रहे कि हम लोग ने ऐसा कुछ किया था लॉकडाउन के बाद. So thanks man, thanks for coming. थैंक यू ब्रो, थैंक It यू ब्रो, was it was great, थैंक यू फॉर हैविंग मी, great. थैंक यू Yeah फॉर man, हैविंग yeah मी। yeah. I learned a ग्रेट टू lot मीट यू। from you. वुड लव टू मीट यू इन मुंबई वंस। Yeah, yeah, we मिलेंगे will. मिलेंगे, जरूर Definitely, मिलेंगे, we are going to जरूर meet मिलेंगे, after जरूर this मिलेंगे। lockdown. Yeah. या Peace, man. Take care चलो, of your family सी यू। and don't go या out. Stay safe. टेक केयर मैन, टेक Yes, केयर, स्टे yes. सेफ, बाय। Bye, bye. So this was Atharva Devanwar. I hope I pronounced it right. And thank you guys. Today, 10 people are live. I really appreciate it that you have last तक आप 10 लोग रुके हैं. Just follow me on Instagram and I have a YouTube channel जिस पे ये video आएगा when it's edited and done. It will take a while to come, okay? ऐसे इतना जल्दी नहीं आने वाला. So just stay calm because लॉकडाउन में काफी हो रहे हैं पॉडकास्ट, so it takes time to edit for me. It's just that one man is editing everything, so it is going to take a while. And thank you, thanks for coming. Enjoy life. Peace out guys. Stay happy, stay safe, stay home.